Hello guys, welcome to Tanaji IS Academy. Today we are going to discuss UPSC CSET exam. This is an introduction video. In this video, I will discuss about syllabus of quant and logical reasoning. So, this is an introduction about me. My name is Arvind Kumar. I am an educator of quant and reasoning. My qualification is BSc, MA Economics and B.Ed. I have 3-year teaching experience and this is my qualified exam IBPS RRB, LIC ETO and LIC assistant. First of all, CSET paper is known as GS2 paper and General Studies is known as GS1 and CSET is GS2. In this paper, you have 80 questions. You have 80 questions for 200 marks. Here is required only 33% for merit calculation. If you prepare well, you can score easily up to 50%. The major part of CSET is quant and reasoning. Quant and reasoning. And reasoning is what? Reasoning is logical and critical plus verbal and non-verbal. So in the syllabus, you have given interpersonal skill including communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, number and their relation, order of magnitude, etc. class 10th level. Means here is a mathematics which is class 10th level. Data interpretation, charts, graph, table, data sufficiency. Overall, it will cover only up to class 10th level. So, here I combined the all topic of quant and reasoning for you. The topic are number system. Generally, number system से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. परसेंटेज एक क्वेश्चन कभी कभी इसको स्किप भी कर दिया जाता है, बट जनरली मैक्सिमम टाइम यहाँ से लिखा गया है. प्रॉफिट एंड लॉस वन क्वेश्चन. रेशियो एंड प्रपोर्शन. रेशियो प्रपोर्शन का अगर कोई एक्चुअली क्वेश्चन नहीं मिलता तो इसका हमें यूज देखने के लिए मिल जाता है, तो हम इसको एक क्वेश्चन की तरह कंसीडर करते हैं. टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमारे पास मिलता ही है. एवरेज. एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछा जाता है. प्रॉब्लम एंड एजेस. ये ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन हर बार देखा गया है इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन. एंड data interpretation or known as DI. Generally, we call them DI. DI has 2 or 3 questions. And then another one topic is cube and dice. Cube and dice is more important. More important because यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है. यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. कैलेंडर जनरली 1 क्वेश्चन आस्क्ड और 1 to 2 sometimes. क्लॉक 1 क्वेश्चन sometimes. सिलोजिज्म. सिलोजिज्म 1 क्वेश्चन जनरली. एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है. वेन डायग्राम. एक्चुअली वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए या ना आए इसका यूज देखने के लिए मिल जाता है. अगर
एग्जैक्टली वेन डायग्राम का क्वेश्चन ना दिया जाए तो इसके यूज से होने वाले क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको 1 से 2 क्वेश्चन तक कंसीडर करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। सीरीज, सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज यहाँ पर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये मैक्सिमम पूछा जाता है। और यहाँ पे सीरीज 2 टाइप से कवर होती हैं, एक नंबर एंड सेकेंड वन इज लेटर सीरीज। तो वी विल डिस्कस अबाउट number series and letter series. Both type of question we will discuss. Another one, data sufficiency. Actually, data sufficiency is not the different topic, but here is the conceptual knowledge of every topic. अगर आपके पास सभी टॉपिक की अच्छे से नॉलेज है तो डेटा सफिशिएंसी बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी क्वेश्चंस का आंसर एग्जैक्टली आंसर नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किन स्टेटमेंट की हमें जरूरत होती है। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि डेटा सफिशिएंसी, कितना डेटा हमें आंसर देने के लिए जरूरत होगा। एंड द अनदर वन इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज लिटिल बिट इजी बिकॉज इट कवर बोर्ड मास रूल। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर इज important because one question generally asked. And another one is coding decoding. Look at the coding decoding. Coding decoding has many types, but we have discussed 3 types only: letter to letter, letter to number, and third one is group of words. जनरली इन तीनों टाइप से ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द अनदर वन इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर और रैंकिंग का एक क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ओकेजनली होता है। 2019 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं पजल फॉर्मेट में, पजल, एंड सेकंड इज कोडेड ब्लड रिलेशन। And another one is logical and critical reasoning. In the logical and the critical reasoning, we discuss so many topics here, like statement and assumptions, statement and conclusion. Okay, and non-verbal, non-verbal में हम इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो यूपीएससी अक्सर पूछता है। वन इज मिसिंग इमेज एंड सेकंड इज series image, and third one is odd one out, odd one out image, odd one out image. So
हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्वांट एंड रीजनिंग में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि इन सब टॉपिक को डिस्कस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I will cover all the topic with concept, because if you know the concept, you will solve any problem. So we will discuss concept, then after concept we will do practice questions, and then previous year question, and final is mock test. So here is the strategy for discuss CSET exam. अगर आपको CSET में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छी कमांड बनाते हैं तो ये आपको एटलीस्ट 50% तक क्वालिफाई करा देगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने तानाजी IAS अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।